السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں افشین قریشی۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجد۔ آغاز سے بات کریں گے شہر بے امان کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں، ڈکیتوں نے ایک اور ماں کی گود اجاڑ دی۔ کرنگی میں صفاق ملزمان کی فائرنگ سے 2 سالہ حورین بچی جاں بحق ہو گئی۔ بچی کے چچا کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں نے گھر کی دہلیز پر بھتیجے کو قتل کیا۔ بھائی جیسے ہی گھر پہنچا تو ڈکیتوں نے گھیر لیا، موٹر سائیکل چھینی، کوئی مزاحمت نہ کرنے پر بھی گولی چلا دی۔ گولی بچی کو گردن میں لگی، بچی موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ ڈاکو کی فائرنگ سے بہن بھی زخمی ہوئی۔ افسوسناک خبر دے رہے ہیں آپ کو کراچی سے، جہاں پر کوئی پرسان حال نہیں، ڈکیتوں نے ایک اور ماں کی گود اجاڑ دی۔ تھے گلی کے اندر خیر کوئی بھی نہیں تھا، اپنے گیٹ پہ بائک روکی ہے، 3 بندے پیچھے سے آئے نقاب کے اندر تھے۔ اب وہ تھے غیر مقامی تو ہو نہیں سکتے، تو انہوں نے اٹھتے ہی فائر مارا دروازے پہ، تو بچی 2 فائر لگے، ایک بڑی بہن کے لگا، اس کے تو اللہ کا شکر ہے پاؤں پہ لگتے ہی نکل گئی، اس کے جو ہے گردن پہ لگ کے کنکڑی کے پاس سے جو آر پار نہیں ہوئی لیکن شہریاں پھنس گیا، تو یہ اس کے موقع پہ واردات کا انتقال۔ یہ گھر کے اندر تھی، اوپر دوسرے گھر میں جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ان کو پروردگار غرق کرے اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی گورنمنٹ پاکستان ان کے لیے بندوبست کرے۔ میں خود آرمی میں تھا 71 میں، بلوچ ریجمنٹ میں، یہ میرے ساتھ ہوا، ایسے نہ جانے کتنے واقعے ہوئے، تو میں تو نہیں چھوڑوں گا ان کو۔ کراچی ڈکیتوں کی اماج گاہ بن گیا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کے واقعات میں مزید 2 شہری جان سے گئے، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا جن بے قابو، موت بانٹتے لٹیروں نے خون ریزی کی انتہا کر دی۔ بنارس پل پر دوران واردات ڈاکوؤں نے گولیاں برسا دی، فائرنگ سے ایک بھائی موقع پر ہی جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ اورنگی ٹاؤن میں بھی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری زندگی کی بازی ہار گیا۔ اقبال مارکیٹ میں 56 سالہ شہری سہراب عالم سودا لینے بازار گئے، فرار ہوتے لٹیروں کی فائرنگ کی زد میں آ کر جان گنوا بیٹھے۔ کورنگی نمبر 3 میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 18 سالہ نوجوان زخمی ہو گیا۔ اورنگی ٹاؤن رئیس امروہی کالونی کے قریب بھی ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 16 سالہ نوجوان زخمی۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی یلغار جاری، 3 افراد ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ کورنگی 4 نمبر کے پارک کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 سالہ معصوم بچی جاں بحق ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز محمد کاشان سے۔ کاشان بتائیے گا۔ نمبر پارک کے قریب انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 سالہ بچی جو ہے وہ جھماک ہو گئی ہے، جبکہ بچی کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ بچی کے چاچا نے جو ہے میڈیا سے گفتگو کری ہے، ان کا کہنا ہے کہ بڑے بھائی جو ہے وہ 125 گاڑی کی ہمراہ اپنے آفس سے گھر کی جانب پہنچے تھے۔ یہاں پر گلی میں مسلح ڈاکو ہیں جنہوں نے فائرنگ کری ہے۔ بچی جو ہے گھر کے مرکزی دروازے کے اندر داخل ہو رہی تھی، جا کے ڈاکو کی گولی جو ہے بچی کی گردن پہ لگی ہے، جس سے بچی کی موت واقع ہوئی ہے۔ بچی کی لاش جو جنہیں اسپتال میں موجود تھی، قانونی ضابطے کی کارروائی یہاں پر مکمل کرنے کے بعد بچی کی لاش کو جو ہے گھر منتقل کر دیا گیا۔ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا ہے۔ ایسے ہی اورنگی ٹاؤن میں 2 بھائی جو ہیں وہ بنارس کے پل سے گزر رہے تھے، وہاں پر بھی ڈاکو کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس میں ایک بڑا بھائی معیز جو ہے وہ زخموں کو تاب نہ لاتے ہوئے وہ جاں بحق ہو گیا۔ کراچی میں آج شام گئے جو ہے مسلسل ہی جو ہے مختلف مقامات جو ہیں اس میں ڈاکو کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، جس میں 3 افراد جو ہے اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پہلا واقعہ جو ہے پاکستان بازار تھانے کی حدود میں پیش آیا، جس میں ایک شخص جو شہری جو ہے وہ جاں بحق ہوا۔ اس کے بعد بنارس پل پہ جانے والے 2 بھائی جو ہیں ان میں سے ایک بڑا بھائی جو ہے وہ آج جھمبات گئے جو ہے کورنگی کے علاقے 4 نمبر پارک کے قریب واقعہ پیش آیا، جس میں بچی جو ہے جھمباک ہو گئی ہے۔ تاہم پولیس کی محمد کاشان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آصف علی زرداری کا چیئرمین سینیٹ کے عہدے پر بڑا سرپرائز دینے کا فیصلہ۔ چیئرمین سینیٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی کے بجائے ڈارک ہارس نام سامنے آ گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو چیئرمین سینیٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ پیپلز پارٹی میں شامل ہو کر چیئرمین سینیٹ بنیں گے۔ اس طرح وفاق کی 4 اکائیاں ایڈجسٹ ہوں گی۔ صدر مملکت سندھ، وزیر اعظم پنجاب، اسپیکر قومی اسمبلی پنجاب، چیئرمین سینیٹ بلوچستان سے ہوگا۔ خیبر پختونخوا کو بھی کسی اہم وفاقی عہدے پر ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینیٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یوسف رضا گیلانی سینیٹرشپ سے استعفیٰ دے کر رکن قومی اسمبلی کا حلف لیں گے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی۔ مسلم لیگ نون 108 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ سنی اتحاد کونسل کی 81 جنرل نشستیں ہیں۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص 70 نشستوں میں سے 47 مختلف جماعتوں کو الاٹ۔ سنی اتحاد کونسل کی نشستوں پر فیصلہ پیر کو ہوگا۔
इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। नंबर गेम में नून लीग सबसे आगे 266 जनरल नशिस्तों में से 263 पर पार्टी पोजीशन के मुताबिक 9 आजाद अरकान की शमूलियत के बाद नून लीग के अरकान की तादाद 84 हो गई। खवातीन की 20, अकलियतियों की 4 मखसूस नशिस्तें मिलाकर नून लीग के अरकान की मजमूई तादाद 108 तक पहुँच गयी। कौमी असेंबली में आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 81 नशिस्तें हैं। कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी की 54 जनरल नशिस्तें हैं। खवातीन की 12 और अकलियतों की 2 नशिस्तें शामिल करके मजमूई तादाद 68 हो गई। MQM की 17 जनरल नशिस्तें हैं। अकलियतों की 1 नशिस्त मिलाकर मजमूई तादाद 22 हो गई। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद JUI के अरकान की मजमूई तादाद 8, मुस्लिम लीग काफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान की मजमूई तादाद 4 बनती है। कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग, जिया, MWM, PK मैप, BAP, BNP और नेशनल पार्टी की 1-1 नशिस्त है। कौमी असेंबली के एक हलके में इंतखाबात नहीं करवाए गए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 2 हलकों के नोटिफिकेशन रोक रखे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली में तरजीही अक़लियती नशिस्तों का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 10 में से 7 अक़लियती नशिस्तों के नामों का ऐलान किया है। कौमी असेंबली में नून लीग अक़लियत की 4 नशिस्तें लेने में कामयाब हो गई। कौमी असेंबली में अक़लियत की 2 नशिस्तें PP, 1 नशिस्त MQM लेने में कामयाब हो गई। KP में भी 5 मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUI 2, नून लीग 2 और पीपल्स पार्टी 1 नशिस्त लेने में कामयाब हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 21 खवातीन की मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ताहाल कोई फैसला ना कर सका। पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। मरियम नवाज की आमद पर नून लीगी अरकान ने नारे लगाए। जवाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने भी नारेबाजी की। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव आज किया जाएगा। नून लीग की जानिब से मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए ज़हीर इकबाल चुनर उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान भुचरा स्पीकर और मुइन रियाज डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। नया ऐवान, नया दौर, रविश वही पुरानी। कान पड़ी आवाज सुनाई न थी। पहला इजलास ही 2.5 घंटे ताखीर का शिकार हुआ। सुबह 10 बजे से घंटियां बजती रहीं, कार्रवाई शुरू न हुई। लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर वाले प्ले कार्ड उठाए ऐवान में पहुंचे। नामजद वजीर आला मरियम नवाज ने इस अज़्म का इजहार किया कि पंजाब में अच्छा दौर आएगा। अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। ऐवान में पहुंचने पर लीगी अरकान ने मरियम नवाज का भरपूर इस्तकबाल किया। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तवील इंतजार के बाद स्पीकर सिप्तान खान पंजाब असम्बली पहुंचे। हल्फ लिए बगैर ही इजलास में वक्फा कर दिया। नमाज जुम्मा के बाद मरियम नवाज समेत 313 अरकान ने हल्फ लिया। हल्फ के बाद अरकान असम्बली से रजिस्टर पर दस्तखत कराए गए। बिलावल भुट्टो सरदारी ने मुराद अली शाह को वज़ीर आला सिंध का उम्मीदवार नामजद कर दिया। अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंटोनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में अरकान से कहा कि करप्शन के मामले पर सख्ती से काम लेना है। ऐसा काम होना चाहिए जिससे पार्टी का नुकसान ना हो। आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बंद करें। हमें माजी से बेहतर परफॉर्म करना है। नई सियासत और नई खिदमत का आगाज होगा। वज़ीर आला सिंध के लिए और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। स्पीकर सिंध असम्बली का ओहदा अवैस शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा और आगा सिराज साहब आपको गाइड करेगा। एंटनी नवीद साहब आपका डिप्टी स्पीकर का इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार होगा। ख़ास तौर पे जहाँ तक करप्शन का मामला आपने बहुत सख्ती करना है। आपका किरदार ऐसा होगा कि मैं फ़ख्र कर सकूं कि ये मेरे नुमाइंदे हैं। आपका कोई ऐसा काम ना हो, आपसे ऐसा कोई गलती ना हो जिससे पार्टी का नुकसान हो या मेरा नुकसान हो। हमने माजी से बेहतर परफॉर्म करना है। अगर आप साथ मिल के काम करते हैं और आपस के टांग जो हम खींचते हैं वो आप मुझे 6 महीने दे दे कि वो काम ना हो तो इंशाल्लाह हम उससे भी बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। पाकिस्तान को एक नया सियासत और एक नई खिदमत की ये आगाज़ होगा इंशाअल्लाह ताला।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब करने की समरी गवर्नर को इरसाल कर दी गई। गवर्नर आज किसी भी बात समरी पर दस्तखत करेंगे। ज़राए का कहना है 7 बजे तक गवर्नर हाउस सेक्रेटरीट को समरी मौसूल नहीं हुई थी। समरी 8 बजे के बाद गवर्नर हाउस को मौसूल हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि अभी इस्लामाबाद में हूँ, आज पेशावर पहुँचूंगा। आइन और कानून की पासदारी को यकीनी बनाने वाला शहरी हूँ। समरी मौसूल हुई तो उस पर दस्तखत करने में देर नहीं करूँगा। पीपल्स पार्टी ने सिंध काबीना की तश्कील पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए का कहना है नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन, मुकेश चावला फिर वजीर बनेंगे। सरदार शाह, ज़िया लंजार, सईद खनी, जाम खान शोरो के नाम शामिल हैं। इम्तियाज़ शेख, मोहम्मद बख्श महर, अजरा पेचोहू भी कलमदान मिलेगा। बिलावल भुट्टो सरदारी की मंजूरी के बाद काबीना अगले हफ्ते हल्फ लेगी। सिंध में अपोजिशन जमातों का आज 11 बजे सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। GDA, PTI, जमात इस्लामी, JUI के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हकीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध के 7 करोड़ अवाम के वोट पर डाका डाला गया। 3 जमातों की इज्तिमाई कबर बनेगी। वजीर आजम की कुर्सी गर्म है, जो बैठेगा जल जाएगा। हाफिज नईम ने कहा कि इलेक्शन में बंदर बाट की गई, मैंडेट पर डाका कबूल नहीं। राशिद सोमरो ने कहा कि पुरअमन एहतजाज में किसी ने रास्ता रोका तो जिम्मेदार खुद होगा। सफदर अब्बास ने पुरअमन एहतजाज जारी रखने का अज़म का इजहार किया। पूरे हमारे सिंध के 6-7 करोड़ अवाम के हुकूक पर, वोट पर जो डाका डला और ये जो भानमती का कुनबा जुड़ा है, ये इज्तिमाई सियासी कबर बनेगी इन तीनों पार्टी। ये जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, ये गर्म कुर्सी है, जो बैठेगा जल जाएगा। पीपल्स पार्टी और MQM में बंदर बांट करके सीटें तकसीम की गई हैं और पूरे सिंध में जिस तरीके से डाका डालकर मैंडेट पर कब्जा करके जो कुछ किया गया है, इसको किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। हम पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। किसी सूरत अमन का रास्ता हाथ से जाने नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई हमारा रास्ता रोकेगा तो उसका जिम्मेदार फिर वो होगा, हम नहीं। अगर उन्होंने कोई गैर जमहूरी बात करनी है तो वो उनकी सोच है। हम फिर भी जो पुरअमन रहेंगे और यकीनन देखें ना, एहतजाज जब भी होता है तो उसका बाज़ एहतजाज जब चलते हैं तो उनका फैसला वहीं पे होता है। मरकज़ में हुकूमत साजी, मुलाकातें, मुशावरतें अब भी जारी। MQM वफ़द ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। हुकूमत साजी पर बात हुई। शहबाज शरीफ ने MQM के जज्बे को सराहा। कहा, हम सब जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, सबकी जिम्मेदारी है मिलकर मुल्क को मुआशी खतरात से बचाएं। दोनों जमातों के कायदीन ने अवामी खिदमत के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने, सियासी मफादात के बजाय कौमी मफादात तरजीह देने पर इतफाक़ किया। MQM वफ़द ने चौधरी शुजात से भी मुलाकात की। हुकूमत की तश्कील साजी पर गुफ्तगू हुई। चौधरी शुजात ने कहा, काफ लीग पार्लिमानी सियासत के फ़रोग़ पर यकीन रखती है। अवाम की खुशहाली के लिए काफ लीग तमाम सियासी जमातों से मुशावरत रखेगी। हुकूमत लेने के हक में नहीं थे, हुकूमत बनाने के बाद मुश्किलात का सामना रहेगा। जावेद लतीफ़ी प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू। उनका कहना था कि सियासी जमातों की नाराज़गियाँ मुल्क के हक में नहीं हैं। इन हालात में मालियाती इदारों को कोई ख़त लिखेगा वो मुल्क का दुश्मन होगा। दीगर ममालिक को मुल्की मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। सूरत हुकूमत लेने के हक में नहीं थे क्योंकि हमारे पास सादा अक्सरियत नहीं। अगर सिंपल मेजॉरिटी ना हो तो ये मसाइल पहले दिन से आखिरी दिन तक रहते हैं और ये यकीनन हैं भी और रहेंगे भी। इससे नुकसान रियासत को होगा। जो आप कोट कर रहे हैं मुख्तलिफ जमातों की नाराजगी को, किन हालात में अगर मालियाती अदारों को कोई खत लिखेगा पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ तो वो पाकिस्तान का दुश्मन तस्वर होगा, वो कभी पाकिस्तान का खैर खा तस्वर नहीं किया जा सकता। दूसरे ममालिक को हमारे मामलात में दखल अंदाजी का किसने हक दिया? बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आगे बढ़ना चाहते हैं मगर आप खुद जमहूरियत को डिरेल कर रहे हैं। हमारा कोई भी कदम रियासत अवाम और जमहूरियत के खिलाफ नहीं होगा। बैरिस्टर अली जफर बोले कि बानी PTI ने कहा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान में मुआशी और सियासत से काम की ज़रूरत है। पार्लिमानी सियासत ही होती है और पार्लिमानी सियासत में गवर्नमेंट और अपोजिशन अपना अपना रोल प्ले करती है। जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई कोऑपरेशन की कोऑपरेट करेंगे, मुल्क की बेहतरी के लिए अपने इक़दाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। किसी भी सूरत पाकिस्तान के स्टेट, पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसके कभी भी अगेंस्ट नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क इस हालात से निकले, इकानमी बढ़े, डेमोक्रेसी चले, ये डिरेल ना हो और रूल ऑफ लॉ हो। जहाँ तक PTI इमरान खान साहब का ताक़ा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान की ज़रूरत है इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए, बेहतर
اور ایک استحکام پیدا کرنے کے لیے معاشی استحکام وہ اپنی جگہ جاری رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کا بھی ایک تقاضا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔